Alpha decay beta. Alpha decay हम कहते हैं बेटा, alpha decay relation is an equation which is used to represent the changes occurred in a nucleus when an alpha particle is emitted during the decay process of a radioactive nucleus. We are having, let's say here we are having a parent nucleus X, its mass number is A or nucleon number is A and proton number is Z. Now, when this nucleus is decaying and emitting alpha particle, here is the symbol for alpha particle beta, He42 is the symbol for alpha particle. When alpha particle will be emitted from this decaying nucleus XAZ, then definitely alpha particle will carry 4 mass number along with it and 2 proton number along with it. So due to the emission of alpha particle, this nucleus X will definitely be having a decrease in its mass number by 4 and its proton number will be decreased by 2 because alpha particle is carrying 2 protons along with it and 2 neutrons along with it. So that's why its mass number is decreased by 4 and its proton number is decreased by 2. So whenever we are referring alpha particle decay, alpha decay relation, we'll say that the parent nucleus will have a decrease in its nucleon number by 4 and its proton number will be decreased by 2 beta. Next to the alpha decay relation is the beta decay. During the beta decay, as I have told you earlier, that whenever we are talking about beta decay, basically in a decaying nucleus, a neutron is broken down into a proton and an electron during the decay process. Let's say here is a proton. This is a nucleus which is having 1 proton and 1 neutron, let's say. Here is 1 neutron in it. Here is 1 neutron. Now, during the decay process, this 1 neutron is suddenly broken down into 2. When it is broken down into 2, it will be converted into 1 proton. 1 proton will be formed from it. And 1 neutron and 1 electron will be emitted from it. Here is 1 electron. This electron will be referred as a beta particle. So this is the electron beta. This electron is basically emitted from the nucleus as beta particle, beta negative G. The electron is having tremendous amount of kinetic energy. This amount of kinetic energy is normally not possible for electron outside the nucleus. Outside the nucleus when they are revolving around the nucleus. So this tremendous amount of kinetic energy is only possible for the electrons when they are emitted from a decaying nucleus. Now, if we refer back to this particular parent nucleus before decay, then before decay, what is the situation before decay beta? Before decay क्या situation hold कर रही थी जी? Before decay हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन था बेटा और एक न्यूट्रॉन था. सो इसका हमारे पास मास नंबर जो है, दिस इज इंडिकेटिंग इट्स मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर इज इक्वल टू 2. Its proton number is equal to 1. After decay beta, what is the situation जी? After decay क्या हुआ जी? After decay जी, decay of neutron. जैसे ही एक न्यूट्रॉन डिके हुआ तो हमारे पास अब सिचुएशन क्या है? 1 proton plus 1 proton because neutron has been converted into proton. So because of this, its mass number is still equal to 2 because mass number or nucleon number is sum of protons and neutrons, and its proton number is now more. It has now become 2, that is
1 plus 1 is equal to 2 now. So it means proton number is increased by 1 after the decay, while before the decay proton number is 1, and after the decay proton number has become 2 beta. Similarly, mass number before the decay is 2, and after the decay mass number is also equal to 2 beta. I hope it is clear to everyone. So यही चीज हमने यहाँ पे बीटा डिके रिलेशन में बेटा इंडिकेट की है कि हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस था X, उसका मास नंबर था A, प्रोटॉन नंबर था Z बेटा, मास नंबर A था, प्रोटॉन नंबर Z था। ये न्यूक्लियस जो है वो इससे एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, तो जैसे न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो इसका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो गया बाय 1, Z माइनस -1, बीटा का जो प्रोटॉन नंबर है वो -1 है, सो -1 जी, या चार्ज नंबर -1 है बेटा, -1, और बीटा का मास नंबर 0 होता है तो A-0। सो इसका मतलब है हमारे पास जो न्यू न्यूक्लियस बनेगा उस न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर पेरेंट न्यूक्लियस से 1 ज़्यादा होगा, Z+1 हो गया बेटा, और उसका जो मास नंबर है दैट हैज स्टेड द सेम, वो हमारे पास एज इट इज सेम का सेम होल्ड कर रहा है। सो हमारे पास सेम जो है वो चीज़ जो है वो होल्ड कर रही है। जी मुस्फिरा जी बेटा बताइए प्लीज। जी मुस्फिरा जी बेटा, मुस्फिरा प्लीज स्पीक अप। मुस्फिरा आर यू देयर बेटा? आई हैव ऑलरेडी अनम्यूटेड योर माइक बेटा। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है जी? कोई चीज कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो यू कैन। सर मैंने पूछना है सर, ये मुझे इलेक्ट्रॉन की समझ नहीं आई कि जब न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट हुआ है। बेटा न्यूट्रॉन जो है वो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जी। उसमें हमारे पास जब वो ब्रेकअप होता है तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, न्यूट्रॉन टूटेगा तो वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है, उससे जनरेट होता है बेटा, और जब हमारे पास एक प्रोटॉन ब्रेकअप होता है तो उससे एक न्यूट्रॉन और एक बीटा पार्टिकल पॉजिटिव जो है वो एमिट होता है। यहाँ पे हम बीटा नेगेटिव के डिके सर बीटा, जी बेटा, जी बताइए बेटा प्लीज। सर बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम होते हैं? जी बेटा, एक ही चीज है? जी इलेक्ट्रॉन का ही नाम बीटा पार्टिकल है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन का? वो इलेक्ट्रॉन जो किसी डिके होने वाले न्यूक्लियस से एमिट हो। बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वैसे जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस एटम के अंदर, वो बेटा बीटा पार्टिकल नहीं कहलाएगा। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन एक ब्रेक होने वाले न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल कहलाता है। उस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। सो इसलिए हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल पर्टिकुलरली कोड किया जाता है। ओरिजिनली ये आइडेंटिटी यानी बीटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अगर हम बीटा पार्टिकल की एनर्जी जो है उसको हम 0 कर दें थोड़ी देर के लिए, तो बीटा पार्टिकल में और इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं है बेटा।
ठीक है सर। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? मुस्फिरा, एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट बेटा, वी आर जी सर क्लियर है। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा वी आर मूविंग ऑन टू द गैमा डिके। अब हमारे पास ये न्यूक्लियस एक्स है। हमारे पास जब गैमा रेज एमिट होती हैं तो गैमा रेज जो है वो मैस कैरी नहीं करती, तो इसलिए गैमा रेज का ना तो मैस नंबर होता है, ना प्रोटॉन नंबर होता है, ना चार्ज नंबर होता है। तो गैमा का सिंबल 0 है। गैमा अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, तो कोई भी न्यूक्लियस जब गैमा रेज एमिट करता है तो वो पहले गैमा रेज एमिट करने से पहले उसकी एनर्जी स्टेट हाई होती है, वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो हमने ये न्यूक्लियस एक्स जो है इसको शो किया हुआ है। एक्स ए जी इसका ए मैस नंबर है, जी इसका प्रोटॉन नंबर है, और इसके साथ ऊपर हमने स्टार एस्ट्रिक जो है वो शो किया हुआ है। ये एस्ट्रिक इंडिकेट कर रहा है न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट। अब जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है वो गैमा रेज की शक्ल में एनर्जी रिलीज कर देता है एक्स्ट्रा, तो फिर ये एक्साइटेड न्यूक्लियस अनएक्साइटेड हो जाता है, और इस न्यूक्लियस के मैस नंबर और प्रोटॉन नंबर में किसी तरह की कोई चेंज एग्जिस्ट नहीं करती। सो एज इट इज वो न्यूक्लियस ओरिजिनली होल्ड करता है ए जी, मैस नंबर इसका ए रहता है, प्रोटॉन नंबर इसका जी रहता है। यहां तक बात समझ आ गई जी? सो अल्फा एमिट होगा तो न्यूक्लियस में मैस नंबर 4 से डिक्रीज होगा, प्रोटॉन नंबर 2 से डिक्रीज होगा। बीटा एमिट होगा बेटा न्यूक्लियस में से, तो मैस नंबर जो है वो अनचेंज रहेगा, जबकि प्रोटॉन नंबर में एक इंक्रीज आ जाएगी, 1 की इंक्रीज आ जाएगी, प्रोटॉन नंबर एक ज्यादा हो जाएगा। गैमा एमिट होगा किसी न्यूक्लियस से, तो देयर विल बी नो चेंज इन द मास नंबर एंड प्रोटॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, ओनली excited nucleus will become unexcited. Next बेटा, सर यार में गैमा रे लिखा हुआ है कि एक्स रे लिखा हुआ है? ये बेटा गैमा लिखा हुआ है, एक्स रे नहीं लिखा हुआ है। एक्स जो है वो ये गैमा आर की शक्ल में यूं बेटा शो किया हुआ है, ये गैमा है। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट, अब हम बेटा बात करने लगे हैं न्यूक्लियर एटम। हमारे पास बेटा ओ लेवल्स में आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, गोल्ड फॉयल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बेटा। ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ पे एएस के सिलेबस में भी है बेटा, और उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं बेटा। जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल जी। ओके जी, ये हमारे पास बेटा, ये हमारे पास बेटा एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट यहाँ पे शो किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट को हम गोल्ड फॉयल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बेटा हम इसी को कहते हैं। इसी को बेटा हम जो है वो गाइगर एंड मार्स्टन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसी का नाम है। तो एक ही एक्सपेरिमेंट के मल्टीपल नेम्स जो हैं वो आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे, तो वो बात इसी एक्सपेरिमेंट की हो रही है, किसी और की नहीं। हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट को मेनली परफॉर्म करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है, एटम के मुतालिक दो तरह के मॉडल जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते थे थ्योरेटिकली इनिशियली। एक बेटा कहलाता था प्लम पुडिंग मॉडल, उसमें ये कंसिडर किया जाता था कि एटम जो है उसमें हमारे पास जो है वो जो एक पुडिंग की शक्ल में जो है, जिस तरह पुडिंग में प्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरह बेटा हमारे पास एटम में जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्कैटर्ड जो है वो उसी तरह एग्जिस्ट करता है विद इन अ सी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पुडिंग की शक्ल में है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसमें प्लम्स की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। दूसरी अप्रोच बेटा इसके बारे में ये थी कि एटम जो है इट इज having two main parts. One is positively charged central part, which is referred as temporarily they have named it as nucleus, and then they have suggested that negative charged electrons are revolving around the positively charged nucleus. And there was
एन अप्रोच के पॉजिटिव चार्ज सारा एक जगह कंसंट्रेटेड है और नेगेटिव चार्ज उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो बेसिकली ये आइडिया जो है वो इनिशियली टेकअप किया गया था सोलर सिस्टम से, कि जिस तरह सोलर सिस्टम में हमारे पास जो है वो सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो उनका ख्याल ये था कि कोई इसी तरह की सिमेट्री जो कहीं ना कहीं एटम के अंदर एग्जिस्ट करेगी, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में लोकेटेड है। अब बेसिकली इस आइडिया को वेरीफाई करने के लिए कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट मेनली परफॉर्म किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट को हम जब रेफर करते हैं बुक्स में तो हम कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर एटम। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर एटम की वेरिफिकेशन करता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जिसमें होल ऑफ द मास ऑफ द एटम जो है वो कंसंट्रेटेड है। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा मेनली उन्होंने जो ऑपरेटर्स चूज किया वो अल्फा सोर्स था, गोल्ड फॉयल थी, उसकी थिकनेस 0.007 मिलीमीटर, वैक्यूम चैम्बर था, मूवेबल टेलीस्कोप पेस्टेड विद फ्लोरेसेंट मटेरियल थी जी। ये हमारे पास मेन इसके जो है वो ऑपरेटर की लिस्ट थी बेटा। अब इसमें जो ऑपरेटर्स चूज किया गया उसकी सर्टेन लॉजिक थी, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और वो कहीं कंसंट्रेटेड है एक जगह पे। इस आइडिया को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने बेसिक एक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया कि रिपल्शन इज ए श्योर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड फॉर द टाइप ऑफ चार्ज, कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी दूसरे पार्टिकल से रिपेल होता है तो इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल पे, दोनों पार्टिकल पे चार्ज की टाइप सेम है, और जब भी कोई पार्टिकल रिपेल होता है तो ये एक चीज़ कंफर्म करती है कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज हैं। तो यहाँ पे क्योंकि प्रिडिक्शन ये थी कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसलिए ऐसा पार्टिकल चूज किया जो खुद भी पॉजिटिवली चार्ज हो, ताकि पॉजिटिव रिपल्शन जो है वो हमारे पास एक श्योर टेस्ट हो फॉर द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इन द एटम। दूसरा बेटा हमारे पास अल्फा सोर्स जो है वो अल्फा पार्टिकल जो है वो हमारे पास कंपैरेटिवली बीटा गैमा के मुकाबले में सबसे बड़ा था साइज में। तो ये ख्याल था कि अगर एटम जो है उसके अंदर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं या एटम जो है वो सॉलिड की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल के कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उस सॉलिड स्फेरिकल एटम से एज कंपेयर टू बीटा एंड गैमा। तो इसलिए भी अल्फा को चूज किया गया क्योंकि साइज में ये सबसे बड़ा था तीनों नॉन रेडिएशंस में से। थर्ड बेटा इसमें गोल्ड को चूज किया गया। गोल्ड को चूज करने की दो मेन रीजन थी। एक तो बेटा गोल्ड प्योर फॉर्म में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, दूसरा हमारे पास गोल्ड जो है इसका मास, इसका प्रोटॉन नंबर खासा ज्यादा है और इसका न्यूक्लियस खासे बड़े साइज का होता है, इसका 79 प्रोटॉन नंबर है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की एकमुलेशन खासी ज्यादा होती है इसके न्यूक्लियस में। तो 79 पॉजिटिव चार्ज आसानी से जो है वो इतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेगा आने वाले अल्फा पार्टिकल पे कि वो आसानी से उसको डेविएट कर दे अपने ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल से बेटा। सो इसलिए गोल्ड को चूज किया गया। अब क्वेश्चन ये था कि हमने तो ये कहा था कि अल्फा जो है वो पेपर में से नहीं गुजर सकता, तो गोल्ड में से कैसे गुजरेगा। तो इस चीज को ज़हन में रखते हुए बेटा उन्होंने ये किया कि जो गोल्ड फॉयल यूज की उसकी थिकनेस बहुत ही कम थी, वो 7 माइक्रोमीटर के पास उसकी थिकनेस थी, यानी हमारे पास मिलीमीटर का 1000 पार्ट ऑलमोस्ट जो है, हमारे पास मिलीमीटर का 1000 पार्ट उसका हमारे पास जो है वो मिलीमीटर का 1000 पार्ट जी हमारे पास उसकी थिकनेस रखी गई। तो इट मींस ये पेपर के मुकाबले में बहुत ही कम थिकनेस है, बहुत ही ज्यादा, एक पेपर से ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स लेसर थिक जो है वो ये हमारे पास फॉयल थी गोल्ड की। वैक्यूम चैम्बर बेटा इस सारे एक्सपेरिमेंट को, ऑपरेटर्स को वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा गया। उसकी रीजन ये थी कि अल्फा पार्टिकल की रेंज हमने कहा था कंपैरेटिवली कम है, पेनिट्रेटिंग पावर कम है, तो अगर अंदर एयर होगी इस एनवायरनमेंट में, यहाँ सारी एयर होगी,
तो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के एटम से कोलाइड करने की बजाय, उनकी वजह से अपना पाथ चेंज करने की बजाय, वो हो सकता है एयर पार्टिकल से कोलाइड करके ये अपना पाथ चेंज कर ले, तो हम यही समझते रहें कि वो गोल्ड फॉइल की वजह से अपना पाथ चेंज कर रहा है। सो इस कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया ताकि अल्फा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ अगर डेविएट करे अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग से, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फॉइल के एटम्स की वजह से ऐसा पॉसिबल हो। मूवेबल टेलीस्कोप जी, इस चैम्बर के अराउंड ये टेलीस्कोप जो है ये रिवॉल्व कर सकती थी चारों तरफ बेटा। इसके ऑब्जेक्टिव लेंस पे हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल पेस्ट कर दिया। फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो डिटेक्टर का काम कर रहा था। यहाँ पे जब जब अल्फा पार्टिकल आके फ्लोरेसेंट मटेरियल को हिट करेगा तो फ्लोरेसेंट मटेरियल में ग्लो प्रोड्यूस होगा। वो ग्लो जो है वो इंडिकेट करता है कि अल्फा पार्टिकल आके जो है वो मूवेबल टेलीस्कोप को उसने हिट किया बेटा। ये सारी जो है वो इसकी ऑपरेटर्स के चॉइस जो है वो इस वजह से ये रखी गई बेटा। अब आप यहाँ पे अरेंजमेंट में देख रहे हैं कि अल्फा सोर्स के बिल्कुल ऑलमोस्ट अपोजिट जो है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल से पेस्टेड मूवेबल टेलीस्कोप प्लेस्ड है, दरमियान में सेंटर में गोल्ड फॉइल में मौजूद है बेटा, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को है तो ही कैन आस्क। क्लियर है बेटा यहाँ तक जी? चलें आगे जी। सर जी जी अल्फा बेटा। पार्टिकल यूज करने के रीजन जी बेटा बताया कि अल्फा पार्टिकल पे एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा ये साइज में सबसे बड़ा होता है अल्फा बीटा गैमा में से। तो अगर हमारे पास एटम में कोई भी सॉलिड एटम सॉलिड स्फीयर की तरह अगर कहीं पे भी बिहेव करता है तो मैक्सिमम कोलिजन की प्रोबेबिलिटी होगी अल्फा की, बीटा गैमा की कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम होगी। दूसरा हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस है एटम का उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को बेटा कंफर्म करने के लिए हमने कहा रिपल्शन इज द शो टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड फॉर द टाइप ऑफ चार्ज। तो अल्फा पे भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो रिपल्शन जो है वो इस चीज को कंफर्म करेगी कि एटम के अंदर वाकई कोई ऐसी सेंट्रल प्लेस है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा कंसंट्रेटेड है। ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा? जी सर। ओके जी, नेक्स्ट। अब बेटा अब बेटा जब इनिशियली उन्होंने ये अल्फा सोर्स जो है इससे जब ऑब्जर्वेशंस उन्होंने लिए तो उन्होंने ये देखा कि 3 तरह के मेन ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने कंडक्ट किया, परफॉर्म किया, मेनली एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था बेटा वो किया था एक्सपेरिमेंट गाइगर और मार्स्टन ने परफॉर्म किया था। उन्होंने अपने रिजल्ट्स जो हैं वो कलेक्ट करके तो लॉर्ड रदरफोर्ड को दिए थे जो मेनली उनके सीनियर प्रोफेसर थे। उन्होंने फिर इस पे जो है वो वर्किंग करके तो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए उन रिजल्ट से बेटा। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जो हैं उनमें सबसे पहली चीज जो रिकॉर्ड की गई वो ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो फॉयल से बिल्कुल सीधे गुजर गए, उन्होंने अपना पाथ चेंज नहीं किया, उनका डेविएशन लेस देन 5 डिग्री था, ऑलमोस्ट स्ट्रेट वो गोल्ड फॉयल से गुजर गए मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। नंबर 2 सेकंड ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड किया गया बेटा वो क्या था जी? सेकंड ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड किया गया वो था हमारे पास जी कि few alpha particles are deflected at acute angles। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो एक्यूट एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी जिनका एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 5 डिग्री से बड़ा था और 90 डिग्री से छोटा था। few alpha particles are deflected at acute angles। नंबर 3 बेटा थर्ड ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड किया गया वो था very few 1 in 8,000 particles, very few 1 in 8,000 particles is bounced back or deflected at obtuse angle। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 8,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक करता था उसी साइड पे जिस साइड पे हमारा जो सोर्स है वो प्लेस था, उसी साइड पे वो बाउंस बैक कर जाता था। तो वो बाउंस बैक करना जो है वो इंडिकेट करता था कि कोई ना कोई ऐसी चीज जो है वो सॉलिड लाइक शायद एटम के अंदर मौजूद है जिसके अगेंस्ट अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट हिट करके उसको बाउंस बैक करता है।
तो ये मेन 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड. आई एम रिपीटिंग इट. नंबर 1, majority of alpha particles pass straight through the foil at angles theta less than 5 degree. Number 2, few alpha particles are deflected at acute angles. कुछ acute angle पे deflect हुए. Very few, 1 in 8,000 particles bounce back or deflected at obtuse angle. ये 3 जो हैं वो observations रिकॉर्ड किए गए. इन 3 ऑब्जर्वेशंस के साथ आगे हमारे पास जो है वो 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए. पहले हम इसको कंक्लूजन्स जो ड्रॉ किए गए बेटा वो क्या क्या थे जी. नंबर 1 जी, मेजॉरिटी ऑफ स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी. जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उसके अगेंस्ट फर्स्ट कंक्लूजन ये ड्रॉ किया गया कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्ट स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एटम जो है वो सॉलिड स्फीयर की तरह होता तो हमारी गोल्ड फॉइल जो है वो उसमें मेनली वो बनी हुई एटम से है. तो अगर एटम सॉलिड स्फीयर की तरह होता तो इसका मतलब है ज्यादातर जो हमारे पास गोल्ड फॉइल का हिस्सा था वो उसमें सॉलिड स्फीयर्स जो हैं वो मौजूद होते. तो सॉलिड स्फीयर्स की प्रेजेंस में अल्फा पार्टिकल के कोलिजन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती. तो वो कोलाइड करके सॉलिड चीज से वो बाउंस बैक करता, उसको पास करके आगे नहीं गुजर सकता था अल्फा पार्टिकल. तो वो अगर बाउंस बैक करता तो फिर हमारे पास अगर सारा एटम जो है वो ज्यादातर जो है वो सॉलिड स्फीयर की तरह होता है तो फिर मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी बाउंस बैक फ्रॉम द गोल्ड फॉइल. दे शुड नॉट बी पास थ्रू द गोल्ड फॉइल. तो हमारे पास फिर ये होना चाहिए था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक करते. यानी जो ऑब्जर्वेशन 3 था सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स इस ऑब्जर्वेशन में हमें मिलते कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक. लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं हुआ. ओरिजिनली इससे बिल्कुल अपोजिट हुआ कि हमारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत कम जो है 1 in 8,000 जो है वो बाउंस बैक हुए. ज्यादातर बिल्कुल सीधे गुजर गए. इट मींस मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी. सो इसका मतलब है कि एटम की ज्यादातर जगह खाली थी, इसलिए अल्फा पार्टिकल आसानी से सीधे गुजर गए इसमें से ज्यादातर. नंबर 2 सेकंड था जी हमारे पास फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट एक्यूट एंगल. कुछ अल्फा पार्टिकल एक्यूट एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए. उसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल अगर आ रहा है वो गोल्ड फॉइल के अंदर से गुजर रहा है बेटा, तो इसका मतलब है उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं. एक तो वो गोल्ड फॉइल के एटम्स को हिट करके बाउंस बैक करे. अगर ऐसा होता तो वो फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन का मेंबर होता वो अल्फा पार्टिकल. बाकी 2 प्रपोजिशंस क्या हैं कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है उसको वो हिट करता है. जब इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन को हिट करने से अल्फा पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर लेता. अब अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन को और अल्फा पार्टिकल के मास को तो बेटा अल्फा पार्टिकल 8,000 टाइम्स हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यानी अगर हम ये सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन 1 kg का है तो अल्फा पार्टिकल 8,000 kg का है. 8,000 kg का हाई स्पीड में मूव करता हुआ एक बॉल आके 1 kg के एक बॉल को हिट करे तो बेटा कौन अपनी जगह जो है वो कौन अपना पाथ चेंज करेगा? डेफिनेटली जो 1 kg वाला बॉल होगा वो इमीडिएटली अपना पाथ चेंज कर लेगा, वो उसके रास्ते में से नॉकआउट हो जाएगा. जबकि जो हैवी पार्टिकल होगा 8,000 kg वाला बॉल होगा वो एज इट स्ट्रेट मूव करता जाएगा. वो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करता जाएगा, वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा. सो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को हिट करने से अल्फा पार्टिकल का पाथ चेंज हो ये पॉसिबल नहीं था. तो ये ऑप्शन हमने ओमिट कर दी. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को की वजह से उसको अट्रैक्ट करता, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर लेता. अब बेटा हमें ये पता है आज कि हमारे पास एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं. सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होते, वो स्कैटर्ड होते हैं. तो अगर अल्फा पार्टिकल अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता तो वो किसी एक इलेक्ट्रॉन की फील करता उसके करीब से गुजरते हुए. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस काबिल नहीं है कि वो इतने ज्यादा मोमेंटम वाले अल्फा पार्टिकल को
उसके ओरिजिनल पाथ से डेविएट करा सके, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू द मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज 8000 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। सो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म होगी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है। अब हमें ये पता है कि सारा पॉजिटिव चार्ज एटम के न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, तो गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स हैं, तो प्लस 79 चार्जेस एक ही वक्त में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे किस पे, अल्फा पार्टिकल पे, तो उनकी फोर्स ऑफ रिपल्शन सिग्निफिकेंट होगी, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर लेगा, डेविएट कर लेगा अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन से। सो सेकंड ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट फिर सेकंड कंक्लूजन ये ड्रॉ किया गया कि देयर इज अल्फा एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस, कि एटम जो है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट है जो कि न्यूक्लियस है। There is a positively charged portion or part present in the atom called nucleus. We can say it as nucleus. Where positive charge is concentrated. थर्ड बेटा कंक्लूजन हमारे पास क्या था जी, एटम हैज ए सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस विच इज डेंसली पॉपुलेटेड। अब एक अल्फा पार्टिकल का 8000 में से सिर्फ एक का बाउंस बैक करना ये इंडिकेट करता है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी ना किसी सॉलिड स्फीयर लाइक चीज से जो है वो हिट करके बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ से फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम के अंदर डेफिनेटली कोई सेंट्रल पार्ट ऐसा है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है, जो बिहेव करता है एज अ सॉलिड स्फीयर, और वो जो सॉलिड स्फीयर है उसका एक एस्टिमेटेड सा उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि उन्होंने कहा कि वो एटम के ओवरऑल साइज से ऑलमोस्ट 8000 टाइम्स स्मॉलर है। तो आज हम जब डायमीटर एटम का और एटम के न्यूक्लियस का रेफर करते हैं तो दोनों में ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स का डिफरेंस होता है। जो न्यूक्लियस का डायमीटर है दैट इज 10,000 टाइम्स